Thank you very much. I'm honored to be here. Uh, First of all, as the secretary pointed out, I'm not a politician. So basically, I have a perspective that I want to share with everybody. Many may not agree with what I say, but that is something, I mean, nobody is supposed to agree with me, actually. So the subject really is not Operation Sindoor. The subject is Operation Sindoor in the times that we live in. That is important. Because if we understand the times that we live in, then it'll be easy for us to understand what will happen after Operation Sindoor, and that should really be the focus. So it's really three parts. One is the times we live in, Operation Sindoor, very briefly, what happened in those 4 days, just the high points, and after that, what is likely to happen. So let me start with the first one, the times we live in, which is basically talking about global geopolitics and South Asia. Now, everybody is aware that the world has changed, and it has changed because of the rise of China. The rise of China has done four things to the global geopolitics. The first thing is that the geopolitics, until the rise of China, which used to happen in transatlantic area, it was limited to America, limited to the Western European theater. Now it has come to our region, Asia Pacific. This is important. I'll explain why it is important. The second is today the world is multipolar. The third is in the multipolar world today there are three great powers. And the fourth is there are two governing systems today in the world. Very briefly, I'll touch on all these four because there's a lot of area to be covered. Now, when we say a multipolar world, what we are saying is that there are 193 countries under the United Nations, big and small. Now, it must be the aspiration of all the 193 countries to be respected by the others and ideally to have their own foreign policy without pressure or intimidation from outside powers. That is a multipolar world. Now, in this multipolar world, we have three great powers. By definition, a great power is a country which has the capability to influence events anywhere in the world. And if you take this as a definition, there are only three countries which qualify, and they are America, China, and Russia. So we have a multipolar world, we have three great powers, and now what has happened is that the geopolitics has come to our region. This is absolutely critical. What means is that until now, until this happened, and this year, generally all the experts in the world believe happened in 2017 during the first Trump administration. The rise of China was acknowledged by America. What this means is that if this is where everything has to happen, that means all the three great powers will now be focused in this region, which means that South Asia and India, which used to be the fringe of the global geopolitics. What fringe means is that we used to make our foreign policy based on three factors earlier. The three factors were geography, history, and national power. When we talk of national power, we are talking of three things basically. And they are economy, military power, and technology. And technology guides the other two. So it is the foundation for both the economic power as well as the military power. Now we have to add another factor, which is global geopolitics that has come in. बहुत सिंपल वर्ड में इसका मतलब ये है, हम आज वहाँ बैठे हैं जहाँ the entire world is focused here, and especially the three great powers. So we have an opportunity today where all the three great powers need India. And see, all this happened when Prime Minister Modi came to power in May of 2014. As I said, the world changed in 2017. So ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई थी और हमने उसको अवेल किया है नहीं किया है, that is the question which I'll answer in a while. And the fourth thing I said is that there are two governing systems. Now what that means is this is unprecedented, कभी नहीं हुआ ये. There is one system which is the extension or the follow-on
of the Cold War, which is led by America. And that system is about military power. It is about a zero-sum game. That means if I win, then you have to lose. That's a zero-sum game. It is about balance of power politics. And that is what the colonists led by America. That means I'm not talking of what is called the global North nations, which is America and the industrialized West, which is 20% of the world population. They follow this model. एक और model है, a new model that has come up, and that came because of China, the rise of China. उस मॉडल में चाइना और रशिया भी शामिल है, because Xi Jinping and President Putin, they are completely aligned in their vision. They have a lot of differences, that is besides the point, but as far as the new world order is concerned, they are completely aligned, and this order is about development. This order is about Belt and Road Initiative. And Belt and Road Initiative is where today 151 countries out of 193 in the world are on board. So वो जो third world countries थी, what do they need? They need respect, they need development. वो सब इधर जा रहे हैं. So 80% of the world actually is gravitating towards the model which is supported by two great powers, China and Russia. So ये है ओवरऑल एक जो इस समय सिचुएशन है. अच्छा, अभी क्या है कि द मोदी गवर्नमेंट डिसाइडेड, इंडिया डिसाइडेड दैट लुक, वी वांट टू बी विद द अमेरिकन्स एंड द ग्लोबल नॉर्थ नेशंस. ये एक कॉलोनियल माइंडसेट है अबाउट अ जीरो सम गेम, कि हम जीतेंगे वो तो दूसरे को हारना है. आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस. ऑन द अदर साइड their model is of win-win. Win-win का मतलब क्या है? And this actually comes from the Chinese philosopher Confucius, which basically means it's about harmony. If I talk of, let's say, the human body, the brain has a role, definitive role, heart has a definitive role, lungs का अलग काम है, but they all have to work together for the body to function. That is harmony. That means in the universe, there are different countries, big and small. They all have a place, they all need respect. So there is a possibility of win-win through cooperation. हो सकती है. And this is what Putin also agrees with. So हमने ये तय किया है that we need to be close to the Americans. So although we are a global South nation, because we are a developing country, but we want to be identified with the global North, like the Prime Minister now is going to the G7. On the other hand, जो 80% वर्ल्ड है, as I said, they are with these people. अब देखिए क्या हुआ. Very interesting thing. Starting from Obama, and especially, as I said, the world changed in 2017. All the American administrations, until the Biden administration, that means until the 20th of January 2025, till Trump became the president, the thinking was that इस area में, because this is where the contestation has to happen, and the strength of the Americans is their military power, we should have a security competition with China. This is the American thinking, because this is their strength. For example, in the Western Pacific itself, something like 330 US military bases surround China today. Now let's see this region that I am talking about, very interesting region. इसकी एक साइड पे you have ASEAN in the east. Now what have the Chinese done? Americans created ASEAN. Chinese in 2001 offered them the FTA, free trade agreement. अब वो उसको बढ़ा रहे हैं. They are coming up with a new free trade agreement which includes artificial intelligence, the fourth industrial revolution, technologies. I'm sorry I'm going a little fast because a lot of area has to be covered. Quite happy to take the questions after that. So एक साइड पर तो ये है. So basically what they have done, the Chinese have done is that आज एक situation है जहाँ ASEAN nation, 10 member nation, they do not want war, they do not want to be identified close to America, they want prosperity, they want to stay neutral.
जो allies भी हैं अमेरिका के, like Japan and South Korea, they've also done a triangular economic cooperation with China. Why China? Because China today is an economic superpower. China today does 31% of the world manufacturing. China today is the hub of global supply chains. सब कुछ वहीं बनता है. So एक साइड पे तो चाइनीज ने ये आसियान में कर दिया, when you look at Asia Pacific. दूसरी तरफ देखिए, at the other extreme is Africa. Africa is a continent of 54 nations. As I talk to you, 52 nations right now are in Henan province of Africa with Xi Jinping discussing about how to take the economic projects forward. So there is a total sway of America, and the Russians and the colonists have been thrown out from Africa. अमेरिका को निकाल दिया, फ्रांस को निकाल दिया, सबको निकाल दिया. कहने का मतलब ये है, at the two extremes, when you look at the three great powers, all three great powers are involved. आसियान में भी इन्वॉल्व है, वो मिलिट्री अपना कर रहे हैं, और यहाँ अफ्रीका में भी है. बीच में हम बैठे हैं साउथ एशिया. यहाँ क्या हो रहा है? तो हो ये रहा था, until the Biden administration was here, इंडिया को ऑफर किया गया था कि आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाइए as a military bulwark against China in the Indian Ocean region. Why in the Indian Ocean region? Because annual trade China का, which comes from, let's say, the Gulf or the Gulf of Eden, वो जो पूरा आता है यूरोप से आता है ट्रेड, $3 trillion का, it passes through Indian Ocean, it passes through the Western Pacific. So this is their vulnerability. ट्रेड है उनका. तो इंडिया को रोल दिया गया, एंड इंडिया हैप्पीली टुक इट. वी हैव साइंड ऑल द मिलिट्री अग्रीमेंट्स ऑफ अमेरिका, और हम उनका अब नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं. Once we were very happy till the end of the Biden administration that now we are a military bulwark against China, and we get a lot of respect from the Americans. Not only that, the Americans also were supporting us as the biggest country in South Asia until the Biden administration was there. तो इसमें हम बहुत खुश थे. सो एक नैरेटिव चला हमारे यहाँ, started by the External Affairs Minister, that we are also in a regional competition with China. हमारी जो आज GDP है वो 3.9 ट्रिलियन है, which is basically service based. चाइना की 19 ट्रिलियन है, which is complete manufacturing based, and it is going to the next step of manufacturing, which is what they call the new productive forces. वो एक अलग चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके ऊपर है, चलेगी वो. तो कहने का मतलब ये है कि एक हमने ये सोच बनाई कि अगर अमेरिका इज इन अ ग्लोबल कंपटीशन विद चाइना, वी शुड ऑल्सो बी इन अ रीजनल कंपटीशन विद चाइना. और दोनों देशों की प्रॉब्लम क्या है? इट इज़ अ कॉलोनिस्ट माइंडसेट दैट वी आर नॉट हैप्पी विद द राइज ऑफ चाइना. कि एक मुल्क सक्सेसफुल हो गया है, हमको उससे दिक्कत है, बिकॉज ये एक जीरो सम मेंटालिटी है. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट द होल थिंग. You see, that as far as the Chinese are concerned, as far as the Americans are concerned, they have that capability to compete with China. हम नहीं कर सकते हैं compete. क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, नेशनल पार्क की 3 होती हैं चीज़ें हार्ड पार्क की. उन तीनों चीज़ों में हम चाइना के आसपास भी नहीं है, टेक्नोलॉजी में भी नहीं है, इकोनॉमिक पावर में भी नहीं है, मिलिट्री पावर में भी नहीं है. तो हमारे लिए सबसे बेहतर यही था कि हम उनसे बात ही ना करें. वो हमें मौका मिल गया, जो गलवान हुआ वहाँ हमें मौका मिल गया, दैट वी शुड नॉट हैव नॉर्मल रिलेशन विद चाइना. इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कीप आस्किंग मी, अब क्या होगा, नॉर्मल होगा नहीं होगा? कुछ नॉर्मल नहीं होगा, बिकॉज हम चाहते नहीं हैं. बिकॉज अगर नॉर्मल हो गया तो दिक्कत क्या है? देन देयर विल बी कोऑपरेशन. चाइनीज ऑलरेडी अप्रोच्ड अस एंड दे सेड that we as two big countries, we should work together for the betterment of the small countries in South Asia. And they gave a formula also to Prime Minister Modi. And the formula is China India plus. Plus means a small nation. That let China and India work together, let's say for the connectivity, for the development of Sri Lanka, for the development of Maldives, for Nepal.
वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उनकी डीप पॉकेट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग काबिलियत है, तो वो ऑटोमेटिकली लीडर बन जाएंगे। तो बेस्ट है कि आप उससे बात ना करिए। अभी क्या हुआ है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज कम, इन्होंने फॉरेन पॉलिसी बदल दी है। ट्रंप फॉरेन पॉलिसी इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, which basically means that he wants to build the national power of America in very simple terms. He wants to get the manufacturing back, which in any case is outdated, but that is besides the point. And as far as the Western Pacific is concerned, a realization has come in the US military that the relative power of US military vis-a-vis the People's Liberation Army has declined, which is the truth. So that needs to be built up. Recently, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, पीट हेक्सेट, he was there. He went to Philippines. Now there are two hotspots there in West Pacific, which is the Taiwan and the South China Sea. तो he is gone there. Now we are feeling lost. हम लॉस्ट क्यों फील कर रहे हैं कि क्या क्वाड को अहमियत मिलेगी नहीं मिलेगी? Are we still the security provider or not for the Indian Ocean region? That clarity is not coming. हमने क्या कर दिया है इन द मीन टाइम, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 2014 में सार्क का समिट हुआ था नेपाल में, काठमांडू में। सो सार्क के अंदर देयर आर 3 मेंबर कंट्रीज, विच इज नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। दे प्रपोज्ड दैट चाइना विच हैड अ ऑब्जर्वर स्टेटस, उसको फुल मेंबर बना दिया जाए। इंडिया अपोज दैट, क्योंकि कंसेंसस से चलता है, तो बात रफा दफा हो गई। बट 2016 में फिर उरी अटैक हुआ। 2016 के अंदर जो समिट थी वो इस्लामाबाद में होनी थी, तो हमने उसको छोड़ दिया। बेसिकली इंडिया मूव्ड आउट ऑफ सार्क इन 2016 एंड देन वी डिसाइडेड दैट वी हैव टू मूव इनटू बिम्स्टेक। हमने वहाँ फोकस किया बिम्स्टेक पे। हमने क्या किया, 2 जो मुल्क थे सार्क के, पाकिस्तान, मालदीव्स, उसको हटा के बिम्स्टेक के अंदर यू ब्रिंग इन थाईलैंड एंड यू ब्रिंग इन म्यांमार। यहाँ हमने फोकस रख दिया। देन द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जस्टिफाइड दैट, एक्सप्लेन टू अस दैट व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन बिम्स्टेक। वो इसलिए क्योंकि मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो एज फार एज द लैंड बॉर्डर्स आर कंसर्न्ड, पाकिस्तान एक तरफ है, चीन एक तरफ है, वहाँ हम कुछ खास कर नहीं सकते। अगर हमको प्रोजेक्ट करना है कि हम एक बड़ी ताकत बन गए हैं, तो हमको दिखाना पड़ेगा कि हमारी कुछ स्ट्रेटेजिक रीच है कहीं पर, तो वो सिर्फ ओशन में हो सकती है विद द हेल्प ऑफ द अमेरिकन्स। तो हमने क्या किया, बिम्स्टेक को, देन वी सेड नाउ इट इज़ अलाइंड विद आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एंड देन जयशंकर रिपीटेडली टोल्ड अस ऑल्सो that this is also aligned with the American Indo-US Indo-Pacific policy। मतलब हम पूरे अलाइन हो गए हैं। तो बेसिकली राइडिंग ऑन द अमेरिकन्स, वी वांट टू प्रोजेक्ट दैट वी आर इन अ कंपटीशन विद दैट। कहने का मतलब ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि हमने सार्क को और साउथ एशिया को स्ट्रेटेजिकली छोड़ दिया 2016 में। अब जब आप कोई जगह छोड़ देते हैं, कोई और आके भर लेगा उसको। अब चाइनीज़ ने क्या किया था, उनकी बेल्ट एंड रोड पर एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान एंड भूटान, सब कंट्रीज ने उसको ज्वाइन किया हुआ है बेल्ट एंड रोड को। तो उनकी शैडो तो ऑलरेडी वहाँ आ गई थी। तो अभी देखिए आप ओवरऑल सिचुएशन क्या है। ओवरऑल सिचुएशन ये दिखती है फिलहाल कि हमने साउथ एशिया को छोड़ दिया है। इनफैक्ट अभी जो हमारा ये पार्लियामेंट ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, वो नेबरहुड में कहीं नहीं गया था। तो हमें कोई खास दिलचस्पी है नहीं नेबरहुड में, उसको हम में कोई दिलचस्पी है नहीं। हम इसको छोड़ चुके हैं बिकॉज नाउ वी आर लुकिंग एट आवर स्ट्रेटेजिक रीच विच गोज टू द बेसिकली द ईस्ट एंड देन इट गोज टू द मिडल ईस्ट, व्हाट वी कॉल वेस्ट एशिया। हम यहाँ देख रहे हैं अपने। देखिए ये एक बेसिक रूल होता है मिलिट्री स्ट्रैटेजी का, यू नेवर वेंचर आउट बिफोर इंश्योरिंग दैट योर होम बेस इज सिक्योर। हमने अपनी होम बेस को खाली छोड़ दिया, वहाँ पे चीन की शैडो आ गई। तो अब मैं यहाँ पे इसको, इतनी बात को यहाँ पॉज करता हूँ।
अब बताऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ, बट लेट मी से अ फ्यू मिलिट्री थिंग्स ऑल्सो, जिससे वी अंडरस्टैंड द ऑपरेशन सिंदूर बेटर। तो इसमें मैं आपको 3 बातें बताना चाहूँगा मिलिट्री वाली। पहली बात, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर, जब लड़ाई हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, एक सीज फायर लाइन बनी थी 1 जनवरी 49 को। उसके बाद हमने जंग लड़ी पाकिस्तान के साथ, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी। सी डोंट वरी अबाउट बांग्लादेश, बांग्लादेश वॉज अ गॉन केस फॉर ईस्ट पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान, बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान जो था in any case was 1200 kilometers across India. There is no way they could have brought their operational logistics there for war. वो नहीं हो सकता था, वो तो जाना ही था। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है, किसी भी जंग में हम वो मिलिट्री लाइन को ऑब्लिटरेट कर ही नहीं पाए। जो सीज फायर लाइन थी आज वो कायम है विद अ न्यू नेम, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें ये करना चाहिए था कि 1990 में जब प्रॉब्लम शुरू हुई कश्मीर की, जब पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर अपनी शुरू करी, हमको अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी बनानी चाहिए थी। अगर हम अपनी कन्वेंशनल वॉर कैपेबिलिटी बढ़ाते, दैट वुड हैव डिटर्ड पाकिस्तान। हमने वो नहीं किया 35 साल। तो एक जो मिलिट्री इशू था प्रॉक्सी वॉर का, प्रॉक्सी वॉर इज अ मिलिट्री इशू, जिसको आपको मिलिट्री मीन्स से खत्म करना था बाय बिल्डिंग अ कैपेबिलिटी दैट वुड डिटर पाकिस्तान और टेल पाकिस्तान दैट लुक देयर विल बी अ प्रॉब्लम इफ यू कंटिन्यू विद व्हाट यू आर डूइंग। वी नेवर डिड दैट। नाउ विद द कमिंग ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, ऑब्वियसली इट हैज बीन एलिवेटेड टू अ हायर लेवल। तो ये हमने कर दिया एक। तो अब मैं थोड़ा सा पॉज करके वापस जाता हूँ, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी भूल गया हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। वो बात ये है कि 5 अगस्त 2019 को हमने 370 हटाया, बिना सोचे समझे कि इसका सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुआ क्या कि 6 अगस्त को पार्लियामेंट में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि वी विल बी मेकिंग नाउ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान हिस्सा होगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अक्षय चिन्ह हिस्सा होगा लद्दाख यूनियन टेरिटरी की, लद्दाख की। द सेम डे चाइनीज रिजेक्टेड दैट, दे प्रोटेस्टेड, दे सेड अक्षय चिन्ह इज विद अस, इट वाज ऑलवेज विद अस, यू कांट शो इट ऑन योर मैप्स, न्यू मैप्स एज पार्ट ऑफ द लद्दाख यूनियन टेरिटरी। 11 अगस्त को 2019 जयशंकर एज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, he traveled to China to meet up with his counterpart Wang He to explain to him that look, we have made the maps, but it does not change our position on the ground as far as line of actual control is concerned. China rejected that suggestion. Meanwhile, 370 जब हटा तो पाकिस्तान में भी खलबली मची। The then Prime Minister Imran Khan and the Army Chief Bajwa, General Bajwa, they both went to China to confabulate with the leadership there. Xi Jinping gave personal time to General Bajwa और उन्होंने जनरल बाजवा को ये कहा कि आप डेवलपमेंट पे फोकस करिए। मुझे ये बात ऐसे पता है कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की जो सरकार थी उस समय इमरान खान की, दे रिलीज द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड आई वॉज वन इंडियन दे हैड इन्वाइटेड देयर। तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी बोले, वहाँ आर्मी चीफ भी बोले, उसके बाद आर्मी चीफ और मेरी बातचीत हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, इट ऑल टॉक्स अबाउट कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट, व्हाट अबाउट द कश्मीर इशू? सो ही टोल्ड मी दैट आई हैड अ लॉन्ग मीटिंग विद शी जिनपिंग एंड शी जिनपिंग टोल्ड मी पर्सनली दैट यू फोकस ऑन डेवलपमेंट। व्हाट बाजवा डिड नॉट टेल मी इज दैट शी जिनपिंग ऑल्सो टोल्ड हिम, जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है पाकिस्तान की, वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। तो हुआ क्या, अगर हम लोगों ने ध्यान से देखा होता तो 2 चीज़ें होनी शुरू हो गई 2019 से। ऑन द पॉलिटिकल साइड, द एंटायर चाइनीज लीडरशिप, शी जिनपिंग डाउनवर्ड्स, दे केप्ट सेइंग दैट वी विल सपोर्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी।
खुलेआम बोलते थे वो, हमने उसको नज़रअंदाज किया। दूसरी तरफ द पाकिस्तान एयरफोर्स एंड द प्लाफ PLA एयरफोर्स, दे स्टार्टेड डूइंग एडवांस्ड एक्सरसाइजेस 2019 से शुरू कर दी। काराकोरम में करते थे, वो जो हमारा कॉम्बैट एरिया वहाँ उन्होंने शुरू करा, हमने उसको ध्यान ही नहीं दिया। नॉट ओनली दैट, उस समय से क्या देखा हमने 2021 के अंदर उन्होंने पाकिस्तानी ऑफिसर्स को अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड में एम्बेड कर लिया। वेस्टर्न थिएटर कमांड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरुणाचल प्रदेश। कहने का मतलब ये है जो उनके इंपॉर्टेंट जितने भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे वो उसका हिस्सा बना लिया उनको, सो दैट दे बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल इंडिया। हमने सब चीज़ को देखा ही नहीं बिल्कुल। तो सिचुएशन ये है कि हमें एक बात समझ में नहीं आई हमारी मिलिट्री लीडरशिप को कि इट इज़ नो लॉन्गर आफ्टर 5th August 2019 अबाउट इंडिया पाकिस्तान, इट इज़ नो लॉन्गर अबाउट अ 2-front वॉर। चाइना आपसे लड़ाई नहीं लड़ेगा, उसको ज़रूरत ही नहीं है लड़ाई लड़ने की। इट वॉज सिंस देन अबाउट 1-front रीइंफोर्स्ड वॉर, जो मैं 2019 से अपनी 2 किताबों में लिख चुका हूँ। Basically what meant that was, I explained that this is the term that I coined, and I said what this is, you will fight with Pakistan, but China will be helping Pakistan to the hilt without showing its hand. इस लड़ाई की आप तैयारी करिएगा, बट हमारा वो नैरेटिव था, हमने उसको कायम रखा। तो अभी आपको एक ओवरऑल सिचुएशन मैंने बता दी है कि ये था बैकग्राउंड उसका सिंदूर का। अब होता है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की 3 खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, आवर रिस्पॉन्स वॉज डिसप्रपोर्शनेट। एक टेरर अटैक हुआ, हमने उसको जवाब दिया विद अ कन्वेंशनल वॉर, दैट टू एट द हाईएस्ट लेवल। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में द 2 एयर फोर्सेज विल लीड द वॉर पीरियड। और ये हमने पहली बार नहीं किया, हमने किया था बालाकोट में पहली बार 2019 में, एंड वी एक्सपोज द लिमिटेशंस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। मिसाल के तौर पर हमने बालाकोट में हमारी एयरफोर्स ने ऑपरेशन बंदर करा, चुपके से जाकर वी कॉट देम अनअवेयर, उनके रडार्स बंद थे, वी क्रॉस द देयर एयर स्पेस और हम अपना BVR छोड़ कर आ गए। Next morning they retorted, they came back to us with a response, which is what they call the Operation Swift Retort. याद होगा आप लोगों को, दिन के टाइम उन्होंने किया और उनका फोकस क्या था? उनका फोकस था मिलिट्री टारगेट्स, नॉट नॉन मिलिट्री टारगेट्स। आप कभी एयरफोर्स नॉन मिलिट्री टारगेट्स पे इस्तेमाल नहीं करते बाबा। उनका फोकस था मिलिट्री टारगेट, और उन्होंने क्या देखा, हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत कमज़ोर थी। सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब ये होता है कि काबिलियत की आप दूसरे का कम्युनिकेशन को जैम कर दे। तो हमारे जो ऑफिसर थे उनका कम्युनिकेशन जैम हो गया, ही वॉज टेकन प्रिजनर ऑफ वॉर। हम कुछ लेसन नहीं सीखे, बट वो सीख गए कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे फोकस करो। दिस इज द की टू द मॉडर्न वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है व्हाट इज कॉल्ड, आई वोंट गिव अ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, इट इज समथिंग दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बहुत ज़रूरी चीज़ है। होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में 7 तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। एक मिसाल के तौर पर है विजिबल लाइट। जैसे आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज विजिबल लाइट है। सिमिलरली एक एक्सट्रीम पे है उनके रेडियो वेव्स, जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं। एक्सरे होती है जो हमारी एक्सरे मशीन में काम आती हैं। माइक्रोवेव है जो हम माइक्रोवेव चलाते हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर आप किसी भी फौज के पास एक काबिलियत है इसमें compete करने की, तो वो लड़ाई जीत जाएगा। दूसरा अगर उसमें नहीं compete कर जाएगा, वो लड़ाई हार जाएगा। इट्स सिंपल एज दैट। This is today the crux of the modern warfare, to have a superiority in the electromagnetic spectrum, and the part of that is electronic warfare. How do you jam the communication of the enemy? This is the lesson that they learned. As a consequence of that, देखिए हमने अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी। क्यों पट्टी बांधी वो बताता हूँ मैं।
क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मई 2014 में जब ये आए हैं, इन्होंने अपनी पहली कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस करी अक्टूबर 2014 में, जिसमें इन्होंने ये कहा कंबाइंड कमांडर्स को कि जो हमारा एनिमी है वो विजिबल है, थ्रेट जो है, नो, एनिमी इज इनविजिबल, द थ्रेट इज नोन. It's a famous statement now made by the Prime Minister, basically saying that we have to focus on the terrorist and not on the Pakistan, which is harboring the terrorists or which is the hub of the terrorism. तो वो फोकस वो बन गया कि सब कन्वेंशनल वॉर हमें करनी है, हमें काउंटर टेररिज्म को करते रहना है. उसी समय मुझे याद है एयर चीफ हमारे होते थे, एयर चीफ मार्शल अरूप राहा. मैंने उनसे पूछा भी था, मैं कहा ये आप कर क्या रहे हैं, बिकॉज ही स्टार्टेड आस्किंग अ रोल कि एयरफोर्स का भी रोल होना चाहिए. अरे बाबा, एयरफोर्स को ये था कि सारी ग्लोरी इंडियन आर्मी को मिल रही है, तकमे मिल रहे हैं, उनको ऑनर मिल रहा है टेररिस्ट मारने का, तो हमें मिलना चाहिए. सो दैट एंटायर लाइन ऑफ लीडरशिप ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, दे ऑल्सो वे वेरी हैप्पी कि हमें भी ऐसा रोल दीजिए कि हम टेररिस्ट के खिलाफ काम करें. तो हमने 2019 में कोई लेसन नहीं सीखा. अब देखिए सिंदूर में क्या हुआ, हमने फिर वही किया. हमने सिंदूर में इस बार जो पाकिस्तान की जो सरहद है उसको हमने ब्रीच नहीं किया, एयर स्पेस को स्टैंड ऑफ वेपन से, बट वी हिट द टेररिस्ट टारगेट, वो हमने किया. पर इस बार वो तैयार बैठे थे. आई वोंट गो इन द टेक्निकल डिटेल्स, ऑल टू टेल यू इज दैट इट इज नॉट रियली अबाउट द J-10 and the PL-15 missile. It is about the ecosystem that was backing that. And when I say ecosystem, what am I talking about? I am talking about the advanced exercises that the Pakistan Air Force had been doing since 2019 with the PLAF. और उसके तहत वो क्या कर रहे थे, इकोसिस्टम का मतलब होता है कि आपकी सैटेलाइट्स, आपके एयरबॉर्न एसेट्स, एयरबॉर्न में जैसे एवैक्स होता है जिससे आप पता करते हैं कितने टारगेट्स हैं, उसको ट्रैक करते हैं, आपके ग्राउंड एसेट्स विच इज़ आपकी एयर डिफेंस वगैरह, और आपके फाइटर्स, इस सब को आप नेटवर्क कर देते हैं. इसका मतलब ये है कि एक तो जो अगर आपका जो हवाई जहाज है, मान लीजिए वो सिर्फ 400 किलोमीटर्स तक देख सकता है, बट बिकॉज नाउ इट इज़ लिंक्ड विद द सैटेलाइट, अब वो 1000 से ज़्यादा देख सकता है. Even before the enemy sees you, you see the enemy. ऊपर से आपने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एज आई टोल्ड यू, दे फोकस देयर आफ्टर 2019 बालाकोट. तो जब उन्होंने मिसाइल फायर करी है, एक तो हमको पता नहीं चला कि मिसाइल फायर हुई है, और दूसरा क्या हुआ है कि हमारा जो सिस्टम था रफाल का, उसमें ये काबिलियत नहीं थी कि उसमें हम आइसा रेडार बोलते हैं जो PL-15 में है, वो काफ़ी पावरफुल था, उसने उसको जैम कर दिया. तो जो हमारा पायलट था उसको पता ही नहीं चला कि मिसाइल ने मुझे लॉक कर लिया है. एक बार मिसाइल लॉक कर देती है और आप उसको नहीं हटा सकते हैं, डिफ्यूज़ कर सकते हैं, इट विल गेट यू. तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट इज़ वन पार्ट, बाइंग द फाइटर्स, बाइंग द PL, द मिसाइल्स. द की थिंग इज आपको इसमें बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है. अभी जैसे हमारे यहाँ फोकस होता है कि आप फाइटर खरीद लीजिए साहब, रफ़ाल ले लीजिए, अरे उससे कुछ नहीं होगा. इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब वो वक्त चला गया जब डॉग फाइट्स हुआ करती थी कि एक हवाई जहाज दूसरे से भिड़ गया. नाउ वी आर लिविंग इन द एज ऑफ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स. 300, 350 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से फायर कर रहे हैं. वो आप तभी फायर करेंगे ना अगर आपके पास एक इकोसिस्टम है, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने समझाया इंटरनेशनल मीडिया को, दैट इज कॉल्ड द मल्टी डोमेन ऑपरेशंस with a special focus on electronic warfare, and this takes years and years. So by doing a disproportionate response, let me tell you a key reason जो मैं आगे आऊँगा अभी, why Pakistan's profile has gone up in the world capital. A key reason of that is, there are two key reasons. One is that they saw that the Pakistan military has emerged out of this 4 days of Operation Sindoor as a peer military competitor of the Indian military. बहुत बड़ी बात है, ये peer competitor उनको दिखाई दिया.
तो उनकी जो मिलिट्री पावर की जो वो थी, औकात थी, वो बहुत बढ़ गई. They have the military power. And the second thing that the world saw is that the Chinese stood by them. Chinese are the people who had the gumption to walk the talk. बहुत बड़ी बात है. तो पहली तो ये बात हुई, डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स से हमने अपनी इंडियन एयरफोर्स की काबिलियत को दिखा दिया और हमारे लॉसेज हुए हैं. आई डोंट वांट टू गो इनटू दोज लॉसेज एट दिस स्टेज. तो कहने का मतलब ये है कि आप जो हम बोल रहे हैं, देखिए, वी हैव टू बी ऑब्जेक्टिव अबाउट थिंग्स. और ऑब्जेक्टिविटी हमें ये बताएगी कि अगर आप ज्योग्राफी देखिए पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है जो इलोंगेटेड है, उसमें डेप्थ नहीं है. उसकी जितनी भी एयरफील्ड्स हैं वो 2050 किलोमीटर के अंदर अंदर हैं सारी की सारी मैक्सिमम. और जो हमारा S-400 है, हमारे ब्रह्मोस है, वो उसको इजीली कवर कर सकता है. नाउ व्हाट दे हैव डन इज दे हैव गॉन टू चाइना, and China is giving them a deadly combination of what is called the J-35A and the HQ-19, which is the air defense system. बहुत powerful air defense system है. It is meant for the IRBMs, intermediate range ballistic missiles, and the KJ-500, which is the airborne assets. तो ये एक बहुत बड़ा combination है जो उनको मिल रहा है. And I won't be surprised, वो पैसे वैसे नहीं लेंगे, उसको ऐसे ही दे देंगे क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है दो तरीके से. एक तो फ़ायदा हो रहा है कि विदाउट फाइटिंग उनके जो हथियार हैं दे आर गेटिंग ऑपरेशनली वैलिडेटेड, उनकी आर्म सेल बढ़ेगी. दूसरा फ़ायदा हो रहा है दे आर कटिंग इंडिया टू साइज थ्रू पाकिस्तान. बहुत फ़ायदा है. तो कहने का मतलब ये है दोनों ने लेसन लड़े हैं, सीखे हैं, पर हमारा लेसन जो है हमें उस पर ध्यान देना है. दूसरी बात, न्यू नॉर्मल क्रिएट करा है. जैसे बताया था अभी कि ये पॉज हुआ है, सीज फायर नहीं है कि जहाँ पर दोनों साइड बैठ के बात करती हैं और तय करती हैं कि ठीक है ये टर्म्स होंगी सीज फायर की. ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी साइड इसको लिफ्ट कर सकती है. कहने का मतलब है वी आर टुडे लिविंग एट द एज ऑफ वॉर. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज वी आर अप अगेंस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना एंड इट्स एक्सट्रीमली लीथल. As I said, it's a one-front reinforced war that we are looking at. And all this talk that I keep hearing, कि अब drones चाहिए, of course you need drones. But more than drones, what you need is, in which nobody is talking about in my country, are the capabilities in the virtual domains of war. And when I say virtual domains of war, I am talking of three things. I am talking of electronic warfare, which is the electromagnetic spectrum. I am talking of cyber capabilities, and I am talking of space. They all link up. Because if you lose here, you lose the war. Simple. Communication आपका बंद, आपको दिखेगा नहीं, आप blinded. It's over. The war is over. क्या लड़ेंगे आप? तो वो आपको पहले बनाना है. फिर आपको एयरफोर्स का इकोसिस्टम बनाना है. So all these things are there, and we are living dangerously. That is the second point. The third point is that the war has changed. लड़ाई बदल गई है. अब ये अभी लोग, द मिलिट्री लीडरशिप विल हेजिटेट टू डिस्कस दिस. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ लड़ाई कैसे बदली है. वो ऐसे बदली है कि एक तो पूरी बैटलफील्ड जो है, अभी आप जो डिफेंस कवर करते हैं उनको आइडिया होगा. हमारे यहाँ क्या होता है, आर्मी के अंदर वो डिव कमांडर होता है, डिव कमांडर के बाद कोर कमांडर होता है, उसके बाद आर्मी कमांडर होता है. दी होल आइडिया ये होता है कि साहब वो सामने जो है एक फ्रंटेज है, तो पहले दुश्मन जो है वो फ्रंटेज को बंद, उसको ब्रीच करेगा, तो वो डिव कमांडर लड़ाई लड़ेगा. जब वो ब्रीच हो जाएगी तो कोर कमांडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो लड़ेगा. उसके बाद फिर आर्मी कमांडर लड़ेगा. तो ये फेजेज में होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. बिकॉज अब जो पूरी है वो एक बैटल स्पेस बन गई है बिकॉज ऑफ मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स. तो पहली बात जो हमें अब सोचनी है कि हमें अपनी इंडियन आर्मी को डाउन साइज करना है ड्रास्टिकली. वी हैव टू पुट द मनी इन द वर्चुअल डोमेन्स ऑफ वॉर. वी हैव टू पुट द मनी इन इंडियन एयरफोर्स. क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है आपने इतने बड़े बड़े जो आलीशान, वो हर अफसर के पास एक हेडक्वार्टर है. यू विल बी एबल टू हाइड नथिंग फ्रॉम द चाइनीज सैटेलाइट्स. 4 सैटेलाइट्स हैं आज दुनिया में जिनकी ग्लोबल रीच है. जीपीएस अमेरिका का, गलीलियो यूरोप का, ग्लोनॉस रशिया का और बेदू चाइनीज़ का. और इन चारों में से बेदू इज़ द नंबर 1. I don't want to go in the technical details. They are the best because they are the latest.
They have all the latest technology. So the point I'm making is that if you don't downsize your army, and when I'm saying downsize the army, I'm saying cut your headquarters. Because आपके headquarters तो दिखेंगे उसको. आप कहाँ लेके जाएंगे headquarters को? At best what you can do is have some advanced headquarters. So ये हमें कुछ lessons हैं जो सीखने हैं. अभी I am coming to a very important thing, and that is what after सिंदूर. देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. As I said, पाकिस्तान की प्रोफाइल बढ़ गई है. कैसे बढ़ी है कि तीनों ग्रेट पास टुडे आर फैसिलिटेटिंग पाकिस्तान. अमेरिका को चाहिए पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म के लिए. इन लोगों का रिश्ता है 9/11 से बहुत पुराना रिश्ता है, वो टूटा कभी नहीं था. एंड आसिफ मुनीर, बिकॉज ही इज नाउ बिकम अ 5 स्टार, वो अटेंड कर रहे हैं कल उनकी 250th आर्मी डे परेड. सॉरी, या आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल. तो अमेरिकन हैप्पी विद देम. द वर्ल्ड डजंट बिलीव आर टॉक ऑफ टेररिज्म, वो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज टेररिज्म फिनिश्ड इन 9/11. उसके बाद जो चला था, जब बुश जूनियर ने बात शुरू करी, यू आर विद अस और यू नॉट विद अस, दैट वाज द डेज ऑफ टेररिज्म. नाउ बिकॉज एज आई सेड द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इज शिफ्टिंग, दिस इज द डे रियली ऑफ द कन्वेंशनल वॉर्स और हाइब्रिड वॉर्स. उसमें टेररिज्म भी हो सकती है, बट टेररिज्म कैन नॉट बी बाय इटसेल्फ. तो ये आपका नैरेटिव कोई नहीं सुन रहा है. अच्छा, चाइना जो है सेकंड ग्रेट पावर उनके साथ खड़ा हुआ है, और जो रशिया है, एज आई सेड, दे आर, उनकी विजन जो है वो अलाइंड है. इनफैक्ट अभी रिपोर्ट आई है कि प्रेसिडेंट पुतिन, ब्रिक्स की समिट हो रही है 6-7 जुलाई को ब्राज़ील में. वहाँ पे 2 मुल्क, चाइना और रशिया, प्रपोज करने वाले हैं पाकिस्तान का नाम एज अ परमानेंट मेंबर. वो दूसरी बात है, होगा नहीं, बिकॉज इट वर्क्स बाय कंसेंसस. इनफैक्ट इसी के तहत फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया सर्गी लैवरोव, ही इज कमिंग, आई थिंक टुमारो और डे आफ्टर ही इज कमिंग टू इंडिया. And one of the things before starting from Moscow, he said is, what I want to discuss is RIC. RIC stands for Russia, India, China. This is the foundation of BRICS. And BRICS is the key institution of the global south. What I said, where 80% of the world is going, which is about development, which is about prosperity, which is about win-win, which is about indivisible security. वो एक अलग चीज़ है. तो he is coming just to discuss that. Obviously he'll be asking our leadership कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ टू कम. तो will he meet with Xi Jinping or not, formally or informally? That is important because अगले साल ब्रिक्स की जो है जिम्मेदारी वो इंडिया के पास आ रही है. तो अब हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, बिकॉज ऑफ अमेरिका 1.3 बिलियन IMF ने लोन दिया है पाकिस्तान को, वर्ल्ड बैंक ने 4 बिलियन दिया है, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने 800 मिलियन दिया है, और उनकी जियोपॉलिटिक्स बहुत बढ़ गई है. पूरी अरब वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड, वो सब लिंक्ड है. सेंट्रल एशिया रिपब्लिक, ये सब रिक्वायरमेंट अमेरिकन की भी है, रिक्वायरमेंट चाइनीज़ की भी है. तो वो सब की आज जो है हमने ऑपरेशन सिंदूर करके, बाय एंड दे शोइंग टू द वर्ल्ड दैट दे आर अ मिलिट्री कॉम्पिटिटर टू इंडिया, वी हैव एक्चुअली रेज दैट जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल एक्सपोनेंशियली. पहली बात तो ये है. दूसरी बात, जैसे मैं आपको शुरू में बता रहा था, वी हैव अबैंडन्ड सार्क. वी अबैंडन्ड दैट इन 2016. नाउ वी आर इन अ लिम्बो, वी आर इन अ कंप्लीट सस्पेंस कि हाउ मच इंपॉर्टेंस विल द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन गिव टू क्वाड, हाउ मच इंपॉर्टेंस इट विल गिव टू इंडिया बीइंग द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशन रीजन, एंड हाउ मच बैकिंग इट विल गिव टू साउथ एशिया. साउथ एशिया में उन्होंने हाथ झाड़ लिए हैं. एक सवाल पूछा था प्रेसिडेंट ट्रम्प से अबाउट बांग्लादेश, एंड ही सेड इट इज़ बिटवीन द 2 countries, दे कैन सॉर्ट इट आउट. ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड. कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आपको बता रहा था, दोनों एक्सट्रीम पे तीनों ग्रेट पावर्स इन्वॉल्व हैं. आज खुला मैदान है फॉर चाइना. देयर इज़ अ स्ट्रेटेजिक वॉइड. इंडिया इज़ नॉट देयर, अमेरिका डजंट वांट टू कम देयर, एंड चाइना इज़ वेरी मच देयर. एंड अब आप सोचिए आगे क्या होगा. प्रोफाइल बढ़ गई है पाकिस्तान की. वाई कांट द चाइनीज
put Pakistan as a strategic alternative to India in the SAARC and revive SAARC. SAARC आज भी जिंदा है, हेडक्वार्टर है उसका नेपाल के अंदर. तो इन पॉसिबिलिटीज को आप सोचिए कि हम अपने नेबरहुड में देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग स्ट्रेटेजिकली आइसोलेटेड. नेक्स्ट देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, ख्वाजा अली, ही मेड ख्वाजा आसिफ, ही मेड अ स्टेटमेंट 2 या 3 दिन पहले कि वी आर लीविंग शिमला एग्रीमेंट, we want to go back to the 1948 UN resolution. And what he said is that we want to call the military line ceasefire line. इसका बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन है, ये मैं आपको समझाता हूँ कितना सीरियस है ये इम्प्लीकेशन. देखिए, जब लाइन ऑफ कंट्रोल बनी थी शिमला एग्रीमेंट के अंडर, उसमें 2 बातें तय हुई थी. पहली बात ये तय हुई थी कि इट विल बी बायलैटरल. We will not allow any third party to come into this. और दूसरी बात ये तय हुई थी कि no force will be used by either side to change this line. कहने का मतलब ये है, दोनों साइड उसको टैक्टिकली तो चेंज कर सकते थे, जो हम करते रहते हैं, यहाँ हमारा उसने हमारा ले लिया, हमने उनका ले लिया, बट ये दोनों की तरफ से ये तय हुआ था अंडर द शिमला एग्रीमेंट. नाउ इफ दे लीव द शिमला एग्रीमेंट, एंड लेट मी टेल यू, everything that the Chinese do, Pakistanis do, they are constantly taking the advice of China. इसको आप बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा कि चाइना और पाकिस्तान को एक देखिए. अब आप, वो हमेशा एक थे ही, पर हमने उसको 5 अगस्त 2019 के पास उनको ओपनली हमने एक बना दिया, वो गलती करके. तो अब देखिए इसका मतलब क्या है. जब वो बोलते हैं हम सीज फायर लाइन पे जाएंगे, इसका इम्प्लीकेशन बहुत सीधा सा है. एक तो वी आर ओपन नाउ, व्हाट दे से वेरी क्लियरली, कि वी आर ओपन टू द मल्टीलैटरल अप्रोच, वी आर ओपन टू द आउटसाइड पावर्स टॉकिंग अबाउट कश्मीर. देखिए, उनका कोर कंसर्न इज कश्मीर, पाकिस्तान का, वो था, वो आज भी है. मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट इज कि सीज फायर लाइन को सुपरसीड किया था लाइन ऑफ कंट्रोल ने. लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई. इफ दे गो बैक देयर, दैट मीन्स वो जो सीज फायर लाइन थी विच इज सुपरसीडेड, उसके जो रूल्स थे जो सीज फायर लाइन के, वो आज लागू नहीं होते. सो दे आर मेकिंग अ केस फॉर अटैक ऑन कश्मीर. प्लीज टेक इट सीरियसली. दिस इज अ केस फॉर द अटैक ऑफ कश्मीर, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है इस देश में. कोई बात ये नहीं समझ रहा है इट इज़ अ वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर. कोई ये समझ नहीं रहा है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स हमारे रीजन में आ गई है. चाइना टुडे इज़ अ डोमिनेंट पावर इन साउथ एशिया. हमने साउथ एशिया छोड़ दिया है, और पाकिस्तान और ये जो दोनों है साउथ एशिया में हमें स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल आइसोलेट करके, मैंने कहा था कि पॉज है अभी ऑपरेशन के अंदर, तो वाई कांट दे लिफ्ट द पॉज. हमसे पहले उनकी तैयारी हो जाएगी. देखिए, जब भी आप कोई चीज़ स्ट्रैटेजी बनाते हैं मुल्क की, you always have to keep 2 things in mind. First is always take into consideration the worst case scenario, not the best case scenario. Number 2, always give more capabilities to your enemy than he actually has, because then you will do well. ये 2 बेसिक बातें हैं, मिलिट्री में भी होती है, वॉर एप्रिसिएशन में. तो मैं आपको ये सब बातें एक बहुत लिटिल टाइम, दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सब्जेक्ट, तो मैं ये आपको बताना चाहता था. बट आई एम ओपन टू क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच.